Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today's class is Harappan polity. That is, who were the people who ruled the Harappan civilization? That is the topic of today's class. And in this topic, we have to discuss either it was ruled by the priest class, Pujari Varg, or either it was ruled by the administrators or ruled by the traders. We have to discuss these points. So students, as we know that in the discovery of the Harappan cities, we have come to know that there was a complete uniqueness and a sort of similarity among the different towns, different houses and roads of the Indus Valley civilization. There was a remarkable similarity. And if we talk about the remarkable similarity, and that similarities could be maintained only by a centralized rule. इतने बड़े एरिया को 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को रूल करने के लिए हमें जरूर कोई सेंट्रलाइज्ड रूल होना चाहिए. एंड वी एक्सपेक्ट दैट देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड रूल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ दैट रिमार्केबल सिमिलैरिटी. अब वो रूलर्स कौन हो सकते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट वाज रूल्ड बाय द प्रीस्ट क्लास. इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने रूल किया? इट वाज रूल्ड बाय द प्रीस्ट क्लास. जो प्रीस्ट क्लास रिलेटेड टू द रिलीजन, उन लोगों ने इसको रूल किया है. अब मोर्टाइमर व्हीलर जो एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, उन्होंने बोला भी है, मोर्टाइमर व्हीलर ने क्या बोला कि इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया वाज रूल्ड बाय द प्रीस्ट क्लास. इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया बोथ वर रूल्ड बाय द Mesopotamia and Egypt was ruled by the priest class. And this Indus Valley civilization was contemporary to the Egyptian and the Mesopotamian civilization. It means if Egypt and Mesopotamia was ruled by the priest, it is quite possible that it was also ruled by the priest class. Now let us discuss this point. Because in the Indus Valley, what we have seen that there was a dominance of the religion and dominance of the rural life. How we can say that there was a dominance of the religion? Because we have discovered the images, the figures, the sculptures of the mother goddess and the prototype of Lord Shiva. That was a three-phased deity. Three-phased deity, prototype of Lord Shiva and mother goddess की images मिलने से up to an extent we can say that there was the dominance of religion in the Indus Valley civilization people. Besides this, one more point is that is the rural life. As we know that few cities of Indus Valley civilization, just like the Harappa or the Mohenjo-daro or the Lothal or the Dholavira, these cities, 8 to 10 cities, they had the urban culture. But rest of the area of the Indus Valley civilization was completely a rural area. And in the rural area, there is always the dominance of the religion as compared to the urban area. Because of that, we can say that the Indus Valley civilization was ruled by the priest class, those who followed the religion. But there is one important drawback in this theory that Indus Valley civilization was ruled by the priest class, because we have not found any temple structure. कोई भी एक टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं मिला है इंडस वैली की जो ruins है, जो बिल्डिंग रिमेन्स है. फ्रॉम देयर वी हैव नॉट डिस्कवर्ड इवन ए सिंगल टेम्पल. And if temple was not discovered from the Indus Valley civilization, then how we can say that it was ruled by the priest class? So that put a big question mark on the topic that it was ruled by the priest class because of the absence of the temples नहीं मिले हैं वहां पर. तो इस वजह से हम नहीं बोल सकते straight forwardly या with authority it was ruled by the priest class. If it was ruled by the priest class, then we must have the traces of some temples like building which we have not discovered from the Indus Valley civilization. Besides this, only one great bath हमें मिला है जरूर. We have discovered a great bath from the मोहनजोदाड़ो. बट वो जो ग्रेट बाथ मिला है वो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज होता था, लेकिन सिर्फ एक स्ट्रक्चर के मिलने से हम पूरी सिविलाइजेशन को ये फीचर नहीं दे सकते कि इट वाज रूल्ड बाय द प्रीस्ट क्लास. So that's why till the script is not deciphered, we can't say with authority it was ruled by the priest class. So we have to wait till the script is not deciphered. Second point is that it also seems that why we are using the word seem, we are using the word seem because it is probable, it's just like a theory, it's a hypothesis, it is yet to be proved. And that point is that it was ruled by the administrators. तो administrators का कैसे यहाँ पर रूल हो सकता है administrator class का?
बिकॉज यहाँ से हमें, जैसे स्टुअर्ट पिगट है, एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, हिस्टोरियन है स्टुअर्ट पिगट, उनका ये मानना है, he says that there were two capitals of the Indus Valley civilization, one was Harappa and one was Mohenjo-daro, और इनकी वजह से ही यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड रूल हुआ था because of a common plan। यहाँ पर हमें common plan मिलता है, a common plan is there and implementation of the common plan is also there। How we can say that there was a common plan? common plan इसलिए था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि यहाँ की जो टाउन प्लानिंग मिली है उसके अंदर रिमार्केबल सिमिलैरिटीज हैं, रोड्स के अंदर रिमार्केबल सिमिलैरिटीज हैं। रोड्स यूज्ड टू कट एट राइट एंगल, और राइट एंगल पर काटने, जब रोड्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती थी तो वहां पर जो टाउन्स बने वो रेक्टेंगुलर शेप्स के टाउन बने इन ऑलमोस्ट ऑल द साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन देयर इज ए क्लोज रिजेम्बलेंस एंड सिमिलैरिटी इन द हाउसेस आल्सो व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। ईच हाउस हैड ए कोर्टयार्ड एंड कोर्टयार्ड आर सराउंडेड बाय द रूम्स एंड इन वन कॉर्नर देयर वाज द किचन। एंड जो स्टेयर्स का जो एरिया होता है, सीढ़ियों का जो एरिया होता है, वो हॉलो एरिया नहीं है सीढ़ियों के नीचे। द एरिया अंडर द स्टेयर इज नॉट एन हॉलो एरिया बट इट वाज फिल्ड विद द ब्रिक्स ऑल्सो। तो और ये पूरी इंडस वैली में हम लोगों को सिमिलैरिटी मिल रही है। एंड यू कैन इमेजिन वेरी वेल व्हाट वाज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। और एरिया उनका था आलमगीरपुर से सुतका जिंडोर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, मांडा में मांडा जम्मू कश्मीर से दामियाबाद तक, और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान शोर्तुगाई और मुंडी गैग का एरिया, आज की पाकिस्तान का एरिया, इतना बड़ा एरिया। और उस एरिया के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा है? रिमार्केबल सिमिलैरिटीज मिल रही है। Remarkable similarities in the construction of the houses, remarkable similarities in the construction of the roads, remarkable similarities in the town planning also. So what it suggests that? It suggests that there was one particular class of people who were ruling from either Harappa or Mohenjo-daro according to Stuart Piggott, and they were responsible for giving the centralized rule to the whole Indus Valley civilization, and it was the work of an administrator, not the work of the priest class. Besides this, जब हम और सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो हमें डिफेंसिव वॉल्स भी मिली हैं। डिफेंसिव वॉल्स जो मिली हैं वो हर हड़प्पन साइट पर हमें एक सिटाडेल मिला है और एक लोअर टाउन मिला है, और सिटाडेल वाज कवर्ड बाय द सराउंडेड बाय ए कॉमन बाउंड्री वॉल। अब उसकी एक डिफेंसिव वॉल भी मिली है। जो साइज ऑफ ब्रिक्स है वो ऑलमोस्ट हर जगह 4:2:1 का मिला है। उसके साथ साथ to join these bricks they used clay, limestone, gypsum। ये वो यूज करते थे, हर जगह उन्होंने इसी चीज को यूज किया है। बिटुमन को यूज करते थे वाटर प्रूफिंग करने के लिए। फिर उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स मिली हैं, जैसे ये टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सनड्राइड ब्रिक्स मिली हैं। सभी फाउंडेशंस के अंदर सनड्राइड ब्रिक्स मिली हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सिटीज में। उसके साथ साथ वेल शेप्ड ब्रिक्स मिली हैं वेल्स में, सॉन ब्रिक्स मिली हैं बाथरूम्स के अंदर, कर्व्ड ब्रिक्स मिली हैं वेल्स के अंदर, और एल शेप्ड ब्रिक्स मिली हैं कॉर्नर्स के अंदर। कॉर्नर्स का अंदर मींस जैसे वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो एक वॉल उन्होंने बनाई, अब उसके साथ जो दूसरी वॉल बनाएंगे और ये वॉल जहां खत्म हो रही है और ये वाली वॉल जहां से शुरू हो रही है वहां पर वो एल शेप्ड ब्रिक्स यूज करते थे। व्हाट टाइप ऑफ ब्रिक्स दे यूज? दैट वाज द एल शेप्ड ब्रिक्स, जिससे वॉल को ज्यादा स्ट्रेंथ मिले। तो इस तरह की जो सिमिलैरिटीज हम लोगों को मिल रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इट सीम्स समवेयर दैट देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रूल। और वो सेंट्रलाइज्ड रूल जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी जैसे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो, वहां बैठकर ही दिया जा सकता था पूरे एरिया को, अप टू अफगानिस्तान और अप टू ईरान पाकिस्तान बॉर्डर तक का जो एरिया है उसको हम सेंट्रलाइज्ड रूल तब दे सकते थे जब हम कहां बैठकर रूल करेंगे? सेंटर में या इंपॉर्टेंट सिटीज में रूल करेंगे। जैसे आज के टाइम में इंडिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज व्हाट? न्यू दिल्ली, बिकॉज दैट इज द कैपिटल, और न्यू दिल्ली में बैठकर ही हम पूरे इंडिया को रूल कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो सेंटर था उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से बैठ, और वो अर्बन एरिया है, रूरल एरिया नहीं है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द एरिया वाज द रूरल एरिया एंड दैट वाज डोमिनेटेड बाय द रिलीजन आल्सो। लेकिन यहाँ हम ये देख चुके हैं कि इट वाज नॉट रूल्ड बाय द प्रीस्ट। उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है क्योंकि टेम्पल्स नहीं मिले। अगर टेम्पल्स नहीं मिले तो इसका मतलब अगर वो प्रीस्ट ने रूल किया होता तो डेफिनेटली दे वुड हैव कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल्स आल्सो, बट दे डिडंट कंस्ट्रक्ट द टेम्पल। तो टेम्पल्स नहीं मिले तो प्रीस्ट ने रूल, इट इज क्वाइट पॉसिबल इट वाज नॉट रूल्ड बाय द प्रीस्ट। और फिर इतनी जो सिमिलैरिटी मिल रही है, जो रिमार्केबल रिजेम्बलेंस है उनकी बिल्डिंग्स के अंदर, टाउन्स के अंदर, रोड्स के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, तो रिमार्केबल सिमिलैरिटी तभी पॉसिबल है जब उनके पास कोई सेंट्रल
सेंट्रलाइज्ड रूल होगा, और वो सेंट्रलाइज्ड रूल किसी गांव में बैठकर या इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो साइड जो विलेज एरिया में हो, जो रूरल एरिया में हो, वहां से बैठकर वो उस पूरी इंडस वैली को रूल नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें सेंट्रलाइज्ड स्टेट में या सेंट्रलाइज्ड साइट्स पर ही बैठकर रूल करना होगा। जैसे स्टुअर्ट पिगट ने बोला भी कि द हड़प्पन्स हैड टू इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, वन वाज मोहनजोदाड़ो एंड वन वाज हड़प्पा। तो इट सीम्स दैट अप टू एन एक्सटेंट वी कैन से दैट because of the remarkable similarity, Indus Valley civilization was ruled by the administrators, but it is also not sure, इसको भी हम श्योरिटी नहीं बोल सकते क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफियर नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें एक और पॉइंट बचा हुआ है, वो है ट्रेडर्स का, हाउ वी कैन से दैट इट वाज रूल्ड बाय द ट्रेडर्स आल्सो। तो इसमें हमें कंक्लूड जो करना है, कंक्लूड हम वो इस तरह से करेंगे कि बिकॉज ऑफ द रिमार्केबल सिमिलैरिटीज वी कैन से दैट इट वाज रूल्ड बाय a centralized rule, but till the script is not deciphered we can't say with authority it was ruled by that particular class. Okay students, thanks.